Thank you for coming to our session. So today's topic is Standard Man and Rockman, Intelligence of Intelligence. Standard concept of intelligence and intelligence or brain intelligence or intelligence जो अपने आप को इंटेलिजेंट है और जो ना पाए वो इंटेलिजेंट नहीं है और दूसरी एक डेफिनेशन जहाँ एक नए सिचुएशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना इंटेलिजेंस है और ऐसा नहीं कर पाना इंटेलिजेंस नहीं है तो देखा जाए तो इन सारी डेफिनेशंस में एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक सिंगल डेफिनेशन से इंटेलिजेंट आ रहे हो तो दूसरे डेफिनेशन में आप शायद इंटेलिजेंट ना निकलना तो एक इंसान एक डेफिनेशन से इंटेलिजेंट है तो वही इंसान दूसरे डेफिनेशन से इंटेलिजेंट नहीं है So what is the actual definition and concept of intelligence? And this question has been an area of interest of many psychologists. So today let's discuss what are the major components or elements required in order to get a proper definition of intelligence. Intelligence के मूल तत्व क्या है? So can you see here the screen please? Yeah, it's visible. It's a normal presentation. Actually, मैम क्या करेगा? आपको समझा देगा presentation and इसके बाद ग्राफोलॉजिकल जो टूल्स होगा, जो ग्राफोलॉजिकल फॉर्मूला होगा, वो मैं नोट कर लेना. Presentation. I will try to explain the theoretical part. Snyderman and Rothman emphasized on three major elements of intelligence. They define intelligence as a general aptitude for learning, often measured by the ability to deal with abstraction and solve problems. Therefore, both Snyderman and Rothman, in their definition of intelligence, emphasized on three major elements. First, aptitude for learning. Second, abstract thinking. And third, ability to solve problems. So in order to establish this fact, Marx, Snyderman and Stanley Rothman conducted a survey of expert opinion on intelligence and aptitude testing in 1987. I repeat, it was a survey of expert opinion on intelligence and aptitude testing conducted in the year 1967. Around 1,020 respondents were randomly selected from different disciplines like psychology, sociology, education, and genetics. For this survey, there was a 16-page questionnaire with 48 multiple choice questions spread over 6 different sections. Out of 30 descriptors, almost all respondents picked out abstract reasoning, ability to solve problems, and ability to acquire knowledge as the most important three elements. So let me quickly give an overview of Snyderman and Rothman's 13 descriptor elements of intelligence as shown in the given table. Let's have a look at the table carefully. The first descriptor, which 99.3% respondents marked as most important, abstract thinking or reasoning.
by the term abstract thinking. Abstract thinking मतलब तर्कसंगत विचार. It is the ability to think about objects or ideas that are not physically present. It is related to actually symbolic thinking. If you give an example of abstract thinking is humor. It is often said comedians are expert in abstract thinking. The next one, which 97.7% respondents selected, is problem solving ability as the second most important element. Problem solving ability refers to the mental process that people go through to analyze and solve problems, especially during crisis situations. For example, if you are in a support scenario, so how do you handle an angry customer? Or how do you respond when a customer asks for a refund? So these type of common situations generally come under problem solving ability. Another very important element of intelligence is capacity to acquire knowledge. It is the process of absorbing and storing new information in our memory. The fourth element is general knowledge, which surrounds a wide range of knowledge topics. Now I request Amal sir to demonstrate these elements graphologically. Over to you, sir. Yes, thank you. Thanks a lot. Actually, we are talking about 13 elements. Okay. तो ये 13 element है. मैडम ने जो मार्क्स मैडम ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड रॉकमैन का स्पिन इंटरसेक्ट का था. एक्चुअली तो बनी 1987 में ये पूरा एक्चुअली तो देखा गया था कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने जोर दिया. ठीक है. इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा मिला क्योंकि इंटेलिजेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो ये इंटेलिजेंस एक्चुअली होता क्या है? इंटेलिजेंस एक्चुअली कुछ ऐसा चीज़ है जो सबके लिए इंटेलिजेंट है. मेरे लिए वो सबसे कॉमन है और सबसे ऑपोजिट भी हो सकता है. ऐसी चीज़ ग्राफोलॉजिकली आइडेंटिटी करना है सबको. शायद समझाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जो नया है इसके लिए. तो लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सबको कहूँगा, मैं कुछ फॉर्मूला दे दूँगा ताकि जो साइकोलॉजिस्ट है आप में जो काउंसलिंग करना चाहते हो डिपेंड करके आप क्या करोगे तो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल आंसर मिल जाएगा. तो मेरा ये वेबिनार करने का ऑब्जेक्टिव भी वही है ताकि सबको इजीली सब लोग काउंसलिंग में हेल्प हो सके सब साइकोलॉजिस्ट को. सबसे पहला आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग. एक्चुअली रीजनिंग तो हम सब नाम लिख के दे दीजिए अगर हम समझ लीजिए हम सबको मैथ से भी बहुत डर लगता है. ठीक है. तो एक्चुअली आप देखो कोशिश करो रीजनिंग या मैथ को मुझे भी डर लगता है. तो अगर मैं मैथ से डर जाऊँ तो इसका मतलब मेरा क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंट कम हो जाए ऐसा बात नहीं है कोई. ठीक है. तो रीजनिंग या कुछ एनालिटिकल एबिलिटी होता है जो सब में वो डिपेंड देखना है उसकी हैंडराइटिंग से. ठीक है. हैंडराइटिंग तो सबका अलग अलग होता है. जैसे आप देख सकते हो मैं आपको जरूर कहूँगा सपोज डॉक्टर लोग क्या करते हैं ईसीजी करते हैं हार्ट का प्रॉब्लम देखने के लिए, है ना. तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं डॉक्टर हार्ट के अंदर जाके देखता है ईसीजी इज शोइंग द हार्ट का रिदम हार्ट बीट कैसे हो रहा है. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट हार्ट बीट द डॉक्टर्स आर डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम. सिमिलर वे हैंडराइटिंग जस्ट लाइक आवर ब्रेन राइटिंग. तो ये हम लोग के ब्रेन को जिस तरह से सिग्नल ब्रेन जिस तरह से अपने हाथों को सिग्नल देता है इस तरीके से ये निकल एंड जैसे आप लिखोगे आपका मिरर इमेज दिख जाएगा. तो फर्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग में सबसे आगे क्या आएगा देखिए स्क्रीन शेयर.
सी, अगर हम कुछ भी राइटिंग करें, सपोज मैं लिख रहा हूँ मैं ये राइटिंग लिखा है यहाँ पे, हैव यू नोटिस इस लेटर का एक लेटर के साथ एक लेटर का जो कनेक्शन कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए ये W हो गया, इसके बाद ये कनेक्शन R के साथ कनेक्शन U शेप की तरह हुआ है ना, U शेप की तरह। ये U शेप, यहाँ पे U शेप ज्यादा नहीं हुआ, ये एंगुलर शेप आ गया, ठीक है। तो ये एंगुलर में भी एंड U शेप दोनों में ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा आते हैं, अंडरस्टूड। अगर आप देखो कोई भी राइटिंग में अननेसेसरी, अगर हम कोई ये आई एंड ये RITI, इसको अगर हम लेते हैं RITI इन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने ये गर्लैंड की तरह एक कनेक्शन बनाया है ना, ये करने से कोई भी सिचुएशन को ना आप स्मूथली हैंडल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कनेक्शन हम लोगों में फ्रेंडली एटीट्यूड बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या रीजनिंग में भी इसका मेमोरी पावर भी अच्छा रहता है, जो बच्चों का मेमोरी प्रॉब्लम रहता है। एंड सपोज आप देख लो एक चीज RI मैंने यहाँ पे लिखा, फिर T इस तरीका से दिया एंड इस तरीका से N लिखा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक गैप आ गया, हैव यू नोटिस देयर इज अ गैप। तो ये गैप, ये I एंड T के बीच, ये I एंड T तो इजीली आप कर सकते हो कनेक्टेड, ITI ये तो इजीली आप कनेक्शन कर सकते हो, ये तो फ्रेंडली कनेक्शन होता है ना, दिस आर वेरी फ्रेंडली कनेक्शन, लेकिन आपने नहीं किया, तो ये हो गया आपका इनएफिशिएंसी स्ट्रोक, अंडरस्टूड। मतलब जो आप कनेक्ट कर सकते हो वेरी इजीली यू शेप से, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें मेमोरी पावर, रीजनिंग एबिलिटी, फ्रेंडली एटीट्यूड, ये सब कुछ आ सकता है उसमें, अंडरस्टूड। तो आप बहुत इजीली सब दूसरों के साथ कनेक्ट कर सकोगे, दूसरों से खुल मिल के बातें कर सकोगे सबसे, ठीक है। आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी बहुत अच्छा रहता है उसमें। नेक्स्ट आप देखो, अगर कोई इस तरह से लिखता है, सपोज मैंने यहाँ पे देखिए ये जो मिडिल वाला पोर्शन है लेटर E एंड ये Y वाला जो पोर्शन है लेटर Y एंड इसका नीचे वाला जो पोर्शन, इसका नीचे वाला जो पोर्शन आ गया एंड इसके ऊपर वाला जो पोर्शन, ऊपर वाला जो पोर्शन ये हो गया, हैव यू नोटिस ये कितना बड़ा है, हैव यू नोटिस दिस इज वेरी लॉन्ग, दिस इज नॉर्मल, दिस इज लॉन्ग। तो अगर हम किसी का भी ये अपर वाला पोर्शन थोड़ा लॉन्ग होता है, मैक्सिमम टाइम दिस टू लेटर को बहुत ज्यादा ध्यान देना, ओनली टू लेटर्स बेसिकली, वन इज लेटर L एंड अनदर इज लेटर H, ठीक है। ये H एंड L को बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये अगर थोड़ा बड़ा रहता है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी भी आ सकता है, ठीक है। एंड अगर किसी का कनेक्शन, जैसा थोड़ी देर पहले कहा, कनेक्शन ITI, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे देखिए ये एंगल की जैसा लग रहा है, एंगल का कनेक्शन में भी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा आते हैं एंड रीजनिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव भी हो सकता है जो हमारे बॉडी में असर करता है। तो जिसका है अभी चेंज मत कीजिए, दूसरे हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसका एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छा है, उसका एंगुलर कनेक्शन है, तो उसको चेंज ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो उसके बॉडी पर इफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू।
तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन क्या चेंज करे या ना करे। नेक्स्ट एक और चीज हमने मैडम ने अभी कहा, दैट इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एक को देखो, कोई बहुत सारे लोग हैं जिसको जो प्रॉब्लम दिया जाए वो कंप्लीट जैसे भी हो कंप्लीट कर देता है, ठीक है, सॉल्व कर लेता है। तो ये एबिलिटी सबको होना चाहिए, ठीक है। जो जिसको नहीं है उसको प्रॉब्लम है, तो ये इंटेलिजेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज आप देखिए, अगर मुझे एग्जाम में मिल रहा है 100% या 95%, 99%, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम है, तो आई डोंट थिंक आई एम सो इंटेलिजेंट। ফটো পেপার বাড়ি ওইটাতে এই পিনটা হয় क्योंकि না मेरे पास ओनली बुकिश नॉलेज है ওটা তাহলে বাড়ি থেকে आनते और कुछ प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं मिल रहा আমি এক है, প্যাকেट isn't it? কিনেছি 120 तो টাকা प्रॉब्लम দিয়ে सॉल्विंग एप्टीट्यूड ज्यादा होना बहुत जरूरी होता है, isn't it? तो देखिए इसका हैंडराइटिंग कैसे हो सकता है, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आएगा किसी का भी अगर जो इस तरीके से लिखता है, it will create lot of problem, understood? तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले किसी का भी लोअर पोर्शन, कोई भी लेटर का लोअर पोर्शन कंप्लीट करना चाहिए, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो लोअर पोर्शन कैसे कंप्लीट करते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे করে দেবো তো আমি না বলেছি नॉर्मल তোমার কাট কই ये लोअर पोर्शन को कंप्लीट करना কি কাট चाहिए। করবো इसका তুমি? मतलब ऐसा नहीं कि লেভেল কাট আসো করো इतना আগে बड़ा कर दो, ওটা আমার কি ठीक করবে তাহলে है, ऐसा नहीं है। কাট আমি अच्छा আগে होगा লেভেল কাটটা अगर করো आप তারপরে তো। नॉर्मल करो, ठीक है, ये नॉर्मल। আমি বলতে চাইছি ওই যারা লেভেলেশন করে হ্যাঁ ওরা ফটো ভেতর তুই করে দিবি ওটা ये लोअर ফটোটা তুলে पोर्शन নেবে नॉर्मल कर दो। নিয়ে इसके बाद आता লেভেলেশন है করে দেবে হবে না না ওইভাবে হবে না। হ্যাঁ एक और चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, চেক আছে এখানে আমি লিখতে হবে তারা दैट इज सपोज मैंने लेटर एल एंड एच के बारे में कहा, है 7602 ना, लेटर एल एंड एच। इसके बाद 41 आप देखो इस एल में क्या होता है, एल में ना बहुत सारा आइडिया होता है हम लोगों के एल में, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा आइडिया उसके दिमाग में भरा हुआ रहता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, मेरे दिमाग में तो बहुत सारा आइडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, वो मुझे देखना पड़ेगा। इंटेलिजेंस के उसके ऊपर डिपेंड करता है, isn't it? तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लेटर एल को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं तभी अप्लाई कर सकूंगा अगर मेरे बॉडी पर ताकत है या नहीं। अगर बॉडी पे ताकत ज्यादा नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे एक्सपीरियंस एबिलिटी, ये आइडिया एक्सपीरियंस एबिलिटी, दैट मींस एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, ये मुझे देखना होगा, ठीक है। तो मुझे देखिए बहुत लोग लेटर एफ इस तरीके से लिखता है ना, दिस इज वेरी कॉमन, जो बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता है, दिस इज वेरी कॉमन। सो इसका ये इंटेलिजेंस से हेल्प नहीं करता है इस तरह का एफ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लेटर जी दिखाया, मतलब लोअर वाला पोर्शन करने के लिए, तो मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है कोई भी काम को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले ये आइडिया एंड एग्जीक्यूशन दोनों को मिलाना पड़ेगा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जैसे अब देख लो, नहीं कोई आधार नंबर नहीं चीज को বলো না তুমি বলবা তো না বললে আমি বলতে नहीं सबसे वाला पोर्शन इस तरीके से दिया 2 एंड 9 ये 5 एफ बना दिया, हैव यू नोटिस? 11 लेटर एफ बना दिया इस আমার তো तरीके से, বলে লিখ 6 ठीक है। तो ये एल वाला पोर्शन ऊपर में आ गया एंड जी का जो नीचे का लूप वो नीचे आ गया, এরকম করে না ठीक है। एंड बीच में क्या आ गया, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ गया, 5 ये स्ट्रेट लाइन, दैट मींस स्लिपिंग लाइन आ गया, 6 ठीक है। तो ये आप लोगों को 8 डबल 5 8 डबल 5 2 0 20 5 7 6 576 ऑब्वियसली किसी का हैंडराइटिंग अगर बहुत ज्यादा এই তো এটা চলে আসছে 0241 नॉर्मल से লাস্টে थोड़ा নাম্বারটা ज्यादा কোকার लार्ज গেছে होता है, হইছে थोड़ा ज्यादा लार्ज होता है, दैट मींस राइटिंग এই তো হয়ে গেছে তোমারটা হচ্ছে না अच्छा अब बराबर देखिए चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है, 5 नहीं 7 लेटर के ऊपर अगर राइटिंग को थोड़ा बड़ा करना है। नंबर 1 लेटर ए আমার যেই তোমার আমার সমস্যা হলো আমার যেই তোমার हम सब लोग लेटर ए ओ डी এই যে তুমি সবটো ठीक है। तो लेटर
AOD अच्छा दीवार GBQ तो है इन लगा सब जिनका আচ্ছা लेटर অন্য একটা নাম্বার বলো, কি নম্বর अगर অন্য थोड़ा ইমার্জেন্সি আরেকটা নাম্বার বলো। बड़ा होता কোন है নম্বর? उसका তোমার নাম্বার oval একটাই वाला কি? portion রন নাম একটা রয়েছে। আচ্ছা थोड़ा থাক बड़ा থাক, होता है अच्छा, मतलब वो ये गेट ओवल वाला বাবার पोर्शन নামটা বলো। আর ওটা তো আমি আমার নাম করে নেবো, আচ্ছা বাবার নাম বলো না, ওই নাম্বারটাই বলো না। বৈদ্যনাথ মন্ডল। বৈদ্যনাথ ठीक है স্পেলিং কি আছে? এই তো। BADHI NATH বৈদ্যনাথ। मेरे कंप्यूटर से मेरा মন্ডলের handwriting এমও দাও না, এমএ দাও। এমও। MA তো লেখো এমও এমও MONDL। MONDAL। জেনারেল কাজ তো আচ্ছা না সিভিল কাজ? क्या लिपिका क्या कह रहे हो आप कुछ लिखा है? ব্লাড গ্রুপ কি আছে জানো? হ্যাঁ ব্লাড গ্রুপ কি A আছে? positive। बात पूछना था हमारा एक तो बात है। पूछना था हाँ बताइए क्या যে ছড়াছড়ি দেখছি ব্লাড গ্রুপ। নমিনি ও নমিনি কাকে করবা? নমিনি ডেট অফ বার্থ লাগবে। এই সালে হাবিব বেতাল से বহু নমিনি মেয়েকে করবা? क्या না नया कोर्स নমিনির নাম নমিনির নাম তো জানো, ডেট অফ বার্থ লাগবে। अच्छा नया कोर्स सबसे ना, पहले ना। नया कोर्स एक्चुअली हम लोगों का बैच कंप्लीट डेट हो ऑफ बर्थ चुका है पहले तो ऑलरेडी बाड़ी फोन करते हैं सिलेक्टेड हो चुके করবা? हैं सब लोग একদম অ্যাকুরেটটা দিতে বলো, যেটা আধার কার্ডে রয়েছে। जनवरी का 4 কার जनवरी আধার কার্ডে যেটা রয়েছে হ্যাঁ, যেটা অরিজিনাল আছে। এখন চেপে যা, আমি তাহলে তোর কাকিমার এই फ्राइडे বৌদির আর ফ্লাওয়ারটা বাদ क्या দিন पे देखिए আমাদের চলে যায়। আমরা ডিলেটটা আর ওই তুই কার্ড আনবি কিন্তু, আচ্ছা আমি খুঁজে নিয়ে আসবো। নাহলে কিন্তু আমি বৌমাদের- আমি কাল পরশু দিনই আমি ঢুকিয়ে দেবো। বৌমাদের কিন্তু গাল দেবো। এ নাও তোমার ফোন নাম্বার বলো, এটা বলো, আধার নাম্বার বলো। combination of three things. First you said it's an এই L, গুলো হাতি L, and niche the বার below part is করছে a B, কিন্তু is it? দিন রাত্রে আমি দুদিন ধরে ট্রাই করছি, হচ্ছে না। তোর হবেও না। 9039 ওর ফার হবে। Thank you. আচ্ছা ফোন নাম্বারটা বলো। আমার ফোন নাম্বার দিয়ে দেন, ছবি তো পাওয়া যাবে না। বলো 9800 এক নম্বর দুটো করে দাও। 9800 536867 अगर कहीं पर DM3 हॉरिजॉन्टल के कोई यूआर। स्ट्रोक देखोगे ओके और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक देखोगे तो ऑब्वियसली उसको आप कहोगे कॉन्फिडेंस अंडरस्टूड उसको ही हम कॉन्फिडेंस कहते हैं ठीक है तो लेटर एल में এদবা এক মিনিট इसको हम कॉन्फिडेंस कहेंगे এক मिनट अंडरस्टूड ऑल ऑफ হ্যাঁ ঠিক করে अच्छा रुक जाइए बहुत बड़ा है लोगों का चैप्टर में नहीं, बहुत टाइम ले रहा हूँ अच्छा यहाँ पे देखिए ये साइज थोड़ा बड़ा करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है नेगेटिव इफेक्ट कोई भी लेटर में बहुत कुछ आ सकता है ठीक है कोई भी लेटर में बहुत कुछ आ सकता है एंड पॉजिटिव भी बहुत कुछ आ सकता है मैं बस पॉजिटिव चीज को बता रहा हूँ अभी एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो मैं आपको भी बता दूँ ठीक है एंड बैलेंस्ड किसी का भी हैंडराइटिंग बैलेंस्ड अगर होता है देखिए मैं आपको बैलेंस किस तरीके से होना चाहिए किसी का भी 3262326481 एल দেখেছো वाई দেখছেন। यहाँ पे देखिए ये बैलेंस्ड हो गया है ना সার্ভিস ফ্রম ইউআইডিএ কারেন্টলি ইজ নট অ্যাভেলেবল, প্লিজ ট্রাই আফটার সাম টাইম। তোমারটাই দিচ্ছে না, আমারটা দিয়ে দিতে হবে। তোমারটাও তোমার বোর্ডটাও দিচ্ছে না। তাহলে আমারটা বাদ ये দেবে। बैलेंस जितना रहेगा আমারটা বাদ দেবে। उतना ही उसका लाइफ भी बैलेंस होगा তোমারটা বার করো। अंडरस्टूड ये होता है उसका प्रॉब्लम और भी की करोगे, ऑटोमेटिकली जैसे सॉल्व ना होता रहेगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई भी प्रॉब्लम আধার নাম্বার দেবো তো? एडप्ट करना कोई भी खराब सिचुएशन को एडप्ट करना एडजस्ट करना ये सबसे ज्यादा आता है ये मीडियम साइज लेटर में ठीक है साइज अगर थोड़ा बड़ा कर ले दो तो दो extrovert होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सट्रोवर्टनेस बढ़ जाता है उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आता है एंड सबसे ज्यादा आते हैं ये मीडियम साइज ये AOD इस तरह से मैं लिख रहा हूँ ये AOD GBPQ जैसे मैंने 7 लेटर कहा ये अगर थोड़ा मीडियम हो साइज तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज्यादा आती है एंड उसका हैंडराइटिंग का प्रेशर जितना ज्यादा होगा बहुत ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है एंड बहुत कम होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है क्योंकि एक चीज देखो अगर मैं इस पेन से लिखने की कोशिश তুমি करूंगा ওই पेन को तो সিএসসি ये তে जो যেহেতু फ्रिक्शन है কি पेन বলবো के सामने जो बल होता है अबे बल से जो ink निकलता है ना बल बल का फ्रिक्शन से की? ink निकलता है तो अगर কিসের কাজ? नॉर्मली हम प्रेस করে নিলি তো আমার থেকে, আবার কটা করাবি? लिखेगा आपको আচ্ছা আমারটা হরিঙ্গাটা কিন্তু ধরে নিয়ে আয়। আমারটা হচ্ছে না এবার? এখান দিয়ে লাইন দে, লেবার কার্ড 40 টাকা 40 টাকা 40 টাকা। नॉर्मल अगर मीडियम प्रेशर लेंगे तो इजीली ठीक है लेकिन अभी भी না না, ওর যখন আধার কার্ড মারছি বলছে ইউডি এর ওয়েবসাইটে নাম্বার নেই, মানে বুংচাং বলছে। कोई भी अगर जो चेंज करना है मैं आपको बता दूंगा ठीक है डोंट चेंज एनीथिंग এখানে কার লোক না नॉर्मली थिंग মুখই তো নাই কার কার ठीक है
আরেকবার আমার দেখলাম अच्छा नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज हंटिंग जिसको हम कहते তুমি हैं রাজ্যেরও নেবা সেন্ট্রালও নেবা সব আরে সব গিরিটা আছে গিরিটা তো হচ্ছে না সব সুবিধা নেবা তুমি এর জন্যই নেটওয়ার্কের বাইরে দেখাচ্ছে उसके साथ आप ऐड कर सकते हो जिसके हैंडराइटिंग में इस तरह का स्ट्रोक आते हैं सपोज ওই তো দিয়েছে यहाँ पे देखिए मैंने एज মেরে लिखा এবার তুই দেখ एंड एक जाओ, स्टार्टिंग में स्क्रीन पे जाओ। देखा आपने स्ट्रोक आ गया দিদিটা একটা মেরে দাও 108 সেকেন্ড 105 সেকেন্ড इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है लेकिन इसका एक पॉजिटिवनेस आता है इसको ना एक्वायर करने का बहुत आदत है वो आप नेगेटिवली देखोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है Pure thumbs मतलब up ही है इसका। ग्रीडीनेस थोड़ा बढ़ जाएगा उसमें एंड लेकिन नॉलेज के लिए भी ग्रीडीनेस रहता है ठीक है तो इस तरह का स्ट्रोक में आपको दिख जाता है इसको हम बैगेट स्ट्रोक कहते हैं कभी कभी ये लेटर टी में भी दिख আমি सकोगे কালকে বাইরে করব अगर मैं टी इस तरीके से যদি लिखता না हूँ तो হয় यहाँ তাহলে पे বাইরে देखोगे করে इसमें एक टी आ गया तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है बहुत कुछ इसका नेगेटिव बहुत सारा मेमोरी उसको डिस्टर्ब करता है वो जहाँ पे जाएगा नेगेटिव मेमोरी लेके ही घूमता है वो ठीक है उसको बार बार याद दिलाता है उसका नेगेटिव उसके साथ क्या हो चुका है ये हाँ, अगर हाँ। आप चेंज कर सकते हो इमीडिएटली चेंज कर सकते हो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आई मस्ट से इफ यू वांट यू कैन चेंज इट राइट नाउ इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इफ यू चेंज इट ठीक है अच्छा नेक्स्ट और बताऊंगा किसी का भी लोअर जोन जो होता है लोअर जोन अगर नॉर्मल हो तो उसका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होता है बहुत अच्छा होता है ठीक है लोअर जोन मतलब ये लोअर वाला पोर्शन ठीक है अगर किसी का देखिए इस तरह का लोअर जोन हो गया तो ये बैलून के जैसा हो रहा है ना ये एक्स्ट्रा हो गया अभी नोटिस तो ये एक्स्ट्रा वाला जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 100% ठीक है तो हमेशा लोअर वाला पोर्शन नॉर्मल होना ही रहता है इसमें नॉलेज भी ज्यादा रहता है एंड आपने कंट्रोल रहता है एक कंट्रोल रहता है सबके ठीक है एंड नॉट ओनली दैट जो इस तरीके से কোনো অপশনই তো দেখাচ্ছে না। सपोज मैं डी लिख रहा हूँ इस तरीके से ठीक है ना बहुत लोग लिखते हैं ना इस तरीके से डी তোমার ফোন নাম্বারটা রয়েছে শিওর তো तो এর সঙ্গে ये লিঙ্ক भी করা ना हम लोग লিংক করা যায় কিনা বলতে পারবো না। अनएंडिंग डिजायर पैदा करता है লিঙ্ক করা আছে কিনা বলতে পারবে না डिजायर पैदा দাঁড়াও करता है তাহলে চেক করে নিচ্ছি मतलब नॉलेज में या कुछ भी हो एंड इसको एक और आदत रहता है मैं आपको एग्जांपल की तरह बता देता हूँ আমার রুলসে যায় তো বাজে suppose you love someone and you want to propose that person okay तो आप उसको propose करोगी तो वो आपको वो उसके सर के ऊपर से चला भी जा सकता है वो उसको डिनाई भी कर सकता है या रिस्पांस ना भी दे सकता है ठीक है लेकिन अगर आप उसको प्रपोज करोगे लिख के मतलब राइटिंग में या मोबाइल पे एसएमएस में या व्हाट्सएप में आधा तो नंबर वो बोलो। आपको आंसर जरूर देगा जस्ट जोकिंग ये मैंने एग्जांपल की तरह ओके, जाइए बताया ना देखिए। तो ये होता है इसका नेचर क्या होता है ये बहुत प्रिंटेड चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है बुकिश चीजों के ऊपर प्रिंटेड चीजों में इसका मतलब उससे नॉलेज इसको अच्छा लगता है अच्छा বলা হচ্ছে না next, 6151 और জিরো না ও এটা इसमें भी आप देखिए জিরো T and H. Suppose in case of THED, Send it to me. THED that, THOUS those, Value does not that, match. these that, those जहाँ ठीक है। जहाँ पे T and H एक साथ रहता है নিচে तो उसमें T अगर छोटा रहता है and H अगर बड़ा रहता है বি ছোট হতো না ठीक है तो वो उसका एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है अंडरस्टूड वो इजीली कोई भी नॉलेज को एक्सेप्ट कर लेता है अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू एंड T বুঝে and যাচ্ছে अगर इससे किसी का एखोनो बड़ा रहेगा एंड एज छोटा रहेगा तो क्या होगा उसका एक्सेप्टेबिलिटी हो जाता है उसका ईगोइस्ट प्रॉब्लम ज्यादा रह जाता है प्रॉब्लम या प्राइड वैनिटी सब कुछ आ सकता है एंड सबसे ज्यादा मैं काम करता हूँ इसलिए कि ये এই তো ওই যে দিছে ওটিপি ভেরিফাই
এটা হচ্ছে NUTWF तो থেকে टी हमेशा छोटा এই रहना ফর্ম चाहिए থেকে এই দেখো কি एच লিখেছে बड़ा रहना चाहिए सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ एच जैसा मैंने कहा एल দেখেছো एच ये এর सब জন্য ঢুকতে দিচ্ছে না आइडिया दिखाता है এ एल লিংক করে নাই एच বুঝলে दिखाता है हम लोग का আমি তো ACS চেক করে দিলাম কি হয়েছে और कहाँ होता है हमारे दिमाग में হ্যাঁ ब्रेन में होता है দে দি দে, আমি टी তোকে এখন इंडिकेट কথা करते हैं বলছি सपोज हम लोगों का তুই আমাকে स्पाइनल দে না कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होता है हमारे हमारे এই ब्रेन एरिया से है ना তার মানে তো এখান থেকে হবে ब्रेन না। एरिया এখান थोड़ा থেকে হবে না ऊपर বাইরে रहता দিক है দিয়ে করতে ब्रेन হবে एरिया थोड़ा नीचे रहता है তো तो তোমার टी কি हमेशा थोड़ा नीचे होना সুইতে কি चाहिए আধার কার্ড লিঙ্ক করা আছে? एच हमेशा ऊपर से তোমার কি আধার কার্ড লিঙ্ক করা আছে? Sir, अगर equal তো height তোমার তো का বাইরে থেকে করেছো, তুমি কি এখান থেকে कंफ्यूजन করেছো? हो जाएगा তুমি তো বাইরে टी থেকে दिखाता করেছো। है आपका ईगो एंड ब्रेन ब्रेन সেটাই তো বললাম। मेंटल एबिलिटी दिखाता है आपका एज तो मेरा ईगो एंड एज दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर clash होगा, okay. ঠিক আছে, না मैं হলে हमेशा कंफ्यूज रहूंगा मैं उसको ये बात कहूँ या ना कहूँ मैं उनसे कहूंगा तो वो अगर मैं তাহলে দেখে লাভ নেই। उनसे कुछ बुरा भला कह देता है उसको কবে না बुरा लग না जाए সে তো আমি কালকে बहुत করবো, कुछ हो বলে सकता है अच्छा नेक्स्ट ये हो गया अच्छा शांति मैम completed the third point isn't it I completed till your memory. Memory. Sorry, general knowledge. Memory and general knowledge. ओके तो जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं আমি সব সামনে সপ্তাহগুলো ফোন খারাপ হয়ে যাচ্ছে হুম अब तक जो मैंने कहा जनरल हाँ। नॉलेज सबसे হ্যাঁ अच्छा না होता আমি है ঢুকতে পারবো না देखिए আমি নিজেরটাই করতে পারিনি अब तक जो मैंने कहा की इन बोल? सब के साथ आप ऐड करना लेटर বাইরে তো ওদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে মেশিনে जनरल দুভাবে नॉलेज করা যায় এক হচ্ছে যদি আধার কার্ডের সঙ্গে ওটিপি থাকে তাহলে ডাইরেক্টলি হয়ে যাবে আর যদি না থাকে তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে আধার কার্ডের সঙ্গে ম্যাচ করলে তারপরে ठीक है इस एरिया पे एंड इसके साथ না होता না है এই সংখ্যা लोअर जोन भी कंप्लीट होना चाहिए হ্যাঁ तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा उसका ठीक है एंड इसके साथ जैसे अभी थोड़ी देर কাট पहले কাট मैंने टी के এখন মনে হচ্ছে इनके बारे में कहा टी भी अच्छी तरीके से अगर इस तरह से होगा तो नॉलेज उसको ज्यादा रहेगा एंड टी एच कॉम्बिनेशन जैसा मैंने कहा एंड एक और चीज मैं बता देता हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर एच अगर कोई इस तरीका से करता है हैव यू नोटिस ये दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों में डिफरेंस क्या है कहाँ कहाँ पर है हैव यू नोटिस तो यहाँ पे एक एंगल की जैसा बन रहा है ना एक एंगल की जैसा बन रहा है यहाँ पे एक एंगल की जैसा बन रहा है ठीक है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी बॉडी पे पड़ सकता है ठीक है जिसका आप हैंडराइटिंग में देखोगे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है लेकिन इसका प्रैक्टिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है ठीक है प्रैक्टिकल नॉलेज जनरल नॉलेज अच्छा रहता है एंड एक और चीज़ मैं कहूँगा डिस्कनेक्ट हैंडराइटिंग एक चीज़ देखो अगर कनेक्शन जैसा मैंने फास्ट कहा था फास्ट में कनेक्शन अगर यू शेप रहता है यू शेप वाला कनेक्शन वो उसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा रहता है एंड कभी कभी डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग में ना प्रैक्टिकल एबिलिटी बहुत अच्छा रहता है अगर नॉट ओनली डिस्कनेक्टेड अगर एवरी लेटर्स आर डिस्कनेक्टेड देन उसका क्रिएटिविटी अच्छा रहता है ठीक है लेकिन आपको देखना पड़ेगा उसका मार्जिन कैसा है उसका नॉर्मल लाइन कैसे दिख रहा है एंड उसका राइट मार्जिन कैसा है आप मार्जिन मार्जिन बेस लाइन स्लांट ये सब कुछ देखना पड़ेगा सपोज जो नया है उसके लिए थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है समझना मैं आपको बता देता हूँ मतलब ओवरऑल राइटिंग अगर अच्छा है उसके लिए डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग बहुत दूर पहुंचा देगा ठीक है एंड ओवरऑल राइटिंग अगर बुरा है उसके लिए डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग कभी भी जिंदगी में कभी भी सक्सेस ठीक है अच्छा नेक्स्ट नंबर 5 होता है मेमोरी अच्छा शम्प्रीति मैम आप जरा बताइए इसके बारे में मैंने So the next descriptor is memory. Memory can be defined as
as encoding, storing, and retrieving of information. It has three important categories, that is sensory memory, short-term and long-term memory. The sixth one, sixth important descriptor is adaptation to one's environment. It implies the adjustment of organism to their environment for better survival. For example, if we take the example of increased use of air condition, which can be considered as an adaptive measure because it reduces health problems during heat waves. Next element, as stated by Snyderman and Rothman, is mental speed. मतलब हमारी जो मानसिक गति है. So mental speed is the processing speed, which is defined as the time taken to do a mental task. It can be visual, like in letters, numbers. It can be auditory in language form or through movement also. Another important element, as mentioned in this table, is linguistic competence, yani भाषिक दक्षता. It is our unconscious knowledge of grammar that allows a speaker to use and understand any language. The next one is mathematical competence. That means an individual can apply mathematical thinking to solve range of problems in everyday situation. For example, mathematical competence, an individual can have good number sense, have a good idea of measurement and estimation, and also solving patterns. So, over to you, sir, for this graphological explanation. Thank you, ma'am. Yes, I'm just sharing this. এটা পকেটে ঢোকা মনে থাকবে না বলো। আমার পেন ড্রাইভ আর এই ওটিজি গুলো তোর কাছে তো। Okay, is it visible to? अच्छा, अभी देखिए हम लोग मेमोरी के बारे में थोड़ा बात करें। अच्छा, जो अभी मैं फिर से कह देता हूँ, जो अभी नया है, अगर कोई नया है वो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, हम अपने नए ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाउन करेंगे नेक्स्ट वेबिनार एंड फ्यूचर प्रोफेशनल। सबसे पहले आप देखिए ये मेमोरी हम कैसे हैंडराइटिंग से देख सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, किसी का भी ये यू शेप वाला कनेक्शन ये इंडिकेट करता है हम लोगों का मेमोरी पावर। इसके साथ ऐड होता है लेटर एल, लेटर एच, ठीक है। एंड इसके साथ अगर कुछ नेगेटिव भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका मेमोरी बहुत असर पड़ता है। अगर कोई सपोज मैं दिस इज योर पेज, ओके, दिस इज योर पेज एंड दिस इज योर हैंडराइटिंग। So have you noticed there is a the lines are drifting? Have you noticed the lines, the margins are drifting actually. Left side margin automatically it is getting drifted. So यहाँ पे मेमोरी का प्रॉब्लम होता है। Understood? यहाँ पे ये अच्छा असर नहीं करता अपने मेमोरी के ऊपर। एंड एक और चीज मैं बता देता हूँ, एंड दिस इज नॉट ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के ऊपर भी ये चेक कर सकते हो, अगर ऐसा है तो ये चेंज कर दो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अगर किसी का डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, नॉर्मली डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग राइटर का मेमोरी थोड़ा वीक रहता है, ठीक है। बहुत चीज उसको दिमाग में नहीं, उसका प्रैक्टिकल एबिलिटी अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको सक्सेस भी थोड़ा देर से मिलता है एंड मेमोरी थोड़ा कम रहता है, नॉर्मली लो रिटेंशन एबिलिटी रहता है। एंड कोई लेटर आई लिखता है, कोई सपोज मैं आई लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, एंड कोई लिखता है इस तरीके से, एक नॉर्मल एक डॉट दे देता है। सो ये वाला आई में मेमोरी थोड़ा क्रिएटिविटी आ जाता है एंड मेमोरी भी अच्छा रहता है।
थोड़ा, ठीक है। एंड कभी कभी आप देखोगे मेमोरी वीक हो जाता है, जिसका आप देखोगे जब उम्र बढ़ जाता है, किसी किसी का उम्र जो ज्यादा ओल्ड एज पर्सन होता है, जो अपर पोर्शन में ना कभी कभी इस तरह का एटीट्यूड आपको मिलेगा देखने के लिए। सपोज यहाँ पे देखिए, अभी नोटिस थोड़ा शेकी हो लग रहा है ना अपर पोर्शन पे। तो ये सब कुछ अगर अपर जोन में दिखाई देता है तो मेमोरी में ये अफेक्ट करता है। ये जनरली ओल्ड एज में ज्यादा दिखाई देता है एंड कम उम्र में दिखाई देता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कोई अगर आई डॉट या टी बार ये सब कुछ अगर कम देता है, आई डॉट सपोज मिस हो गया, लिखते लिखते आई डॉट मिस हो गया, ठीक है, तो those persons are very absent minded person, अंडरस्टूड। अच्छा, टी बार भी किसी का अगर मिस हो जाता है उसमें भी एब्सेंट माइंडेड आ सकता है। एंड अगर जो किसी का देखिए पंक्चुएशन जो हम यूज करते हैं, जो फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, ये अगर कोई कोई ऐसा होता है कि एकदम यूज ही नहीं करते हैं ठीक तरीके से, ठीक है, उसमें भी मेमोरी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। एब्सेंट माइंडेडनेस ज्यादा होता है, उसका कंट्रोल कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी का हैंडराइटिंग का प्रेशर ज्यादा होता है तो उसका मेमोरी अच्छा रहता है थोड़ा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सो उसका मेमोरी अच्छा रहता है। एंड इसके साथ अगर लाइट प्रेशर रहता है, किसी का हल्का प्रेशर यूज कर रहे हैं तो उसका एग्जाम में मार्क्स भी कम आता है, अंडरस्टूड, क्योंकि उसका मेमोरी ये असर करता है, वो भूल जाएगा सब कुछ, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट, अगर लिखते लिखते सपोज आप लिख रहे हो इस तरीके से WRITING, तो यहाँ पे आप देखिए मैं तो ठीक तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक गैप आ गया। अभी नोटिस यहाँ पे एक गैप आ गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप हो गया, ठीक है। तो लिखते लिखते अगर कोई भी वर्ड के बीच में अचानक अननेसेसरी गैप ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, उसमें भी मेमोरी अफेक्ट करता है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। इसके साथ अगर किसी का लेफ्ट मार्जिन जो मैंने अभी दिखाया, ये मार्जिन फिर से दिखा देता हूँ आपको। लेफ्ट मार्जिन, सपोज दिस इज ए पेज, लेफ्ट मार्जिन हैव यू नोटिस, ये बहुत ज्यादा दूर चला गया, दूर से शुरू कर रहे हो आप, है ना, तो आपका लेफ्ट मार्जिन अगर वाइड हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली होता है क्या, हाफ इंची से 1 इंची के बीच होना चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा दूर हो रहा है तो मतलब ये अफेक्ट पड़ेगा अपने मेमोरी के ऊपर, अंडरस्टूड। तो ये भूलने की, एक्चुअली ये डर के मारे भागना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अपने पुराने जो नेगेटिव मेमोरी है उसके उसके डर से ये भागने की कोशिश कर रही है। एंड कभी कभी जैसा मैंने कहा ब्रेक ज्यादा हो जाते हैं, अचानक मतलब जरूरत से ज्यादा वर्ड के बीच में गैप आ जाते हैं, जरूरत से ज्यादा लेटर के बीच में गैप आ जाते हैं, तो वो मेमोरी के ऊपर डिस्टर्ब करता है, ठीक है। एंड अपर जोन, ये अपर जोन वाला जो पोर्शन होता है, सपोज इन केस ऑफ लेटर एच, इस तरीके से मैंने लिख रहा हूँ, लेटर एल, लेटर टी, लेटर बी, ठीक है, तो हर लेटर में जस्ट प्रिंटिंग के जैसा लिख रहा हूँ, है ना, जस्ट वन लाइन के ऊपर डिपेंड करके, सो इसका भी मेमोरी का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसका मेमोरी का रिटेंशन कैपेबिलिटी कम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 6, adaptation in one's environment. Adaptation is very very important for every person. Okay? तो adaptation अगर हम लोगों को चाहिए ठीक तरीके से समझना, कोई भी environment हो हमें अडॉप्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो देखिए एक बच्चा जो ठीक तरीके विंटर सीजन को ठीक तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसको सर्दी लग जाता है ना, ठंडा लग जाता है उसको, तो उसको कोल्ड हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो ये क्यों होता है, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी, इजंट इट। तो ये सेम थिंग अपने साथ भी हो सकता है, नॉट ओनली बुखार,
आपके साथ भी मेरा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है ना। तो ये एडजस्टेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो अपने हैंड राइटिंग से? सबसे पहले आता है मीडियम साइज। अगर साइज मीडियम हो, बहुत लार्ज ना हो, बहुत छोटा ना हो, उसमें एडेप्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अगर मीडियम प्रेशर भी मीडियम रहता है तो भी एडेप्टेबिलिटी हाई रहता है। बैलेंस जोन, जोन अगर अपर वाला पोर्शन, मिडिल वाला पोर्शन, उससे पहले दिखाया मैंने, लोअर वाला पोर्शन अगर अच्छा रहता है तब भी आपका एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। एंड अगर किसी का स्लांट का मतलब क्या होता है, देखिए LITTLE, देखिए यहाँ पे ये सारी स्लांट लेफ्ट की तरफ झुक गया है ना, ये टोटल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा ऐसा है, ये भी ऐसा है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ। तो थोड़ा अगर स्लांट आपका झुक जाए, मतलब थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कहीं बहुत ज्यादा शायद झुक गया फर्स्ट लेटर एल, तो थोड़ा झुकने से आपका एडेप्टेबिलिटी आप बढ़ जाएगा, आप अपना इमोशन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकोगे, ठीक है। एंड वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बीच में अगर कंसिस्टेंट स्पेस रहता है, मतलब जितना होना चाहिए, मतलब नॉर्मल स्पेस रहता है दोनों वर्ड के बीच में, ठीक है, तो भी एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। वो बैलेंस डिस्टेंस मेंटेन करेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल स्पीड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल स्पीड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे तो मतलब 1 आवर चला जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा, मतलब छोटा करके मैं बस फॉर्मूला को यूज करके थोड़ा बता देता हूँ आपको। मेंटल स्पीड होता है हम लोगों का, सपोज आप 1 सेकंड में, सॉरी सपोज 30 सेकंड में आप 50 वर्ड लिखने की कोशिश कर रहे हो, सपोज, एंड दैट इज योर मेंटल स्पीड। आप नॉर्मली वो लिख सकते हो। एंड कोई कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका मेंटल स्पीड ज्यादा है, वो 30 सेकंड में 50 से ज्यादा 60 वर्ड लिख सके, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। मेंटल स्पीड आपके हैंडराइटिंग कितना जोर से आप लिख रहे हो उसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके मेंटल कैपेसिटी के ऊपर। एंड ये कंपेयर, ऐसा नहीं, कंपेयर कभी नहीं करना कि आपका मेंटल स्पीड कम है, मेरा मेंटल स्पीड ज्यादा है, ठीक है। एंड ये कंपेयर होना चाहिए आपके साथ, आपका मेंटल स्पीड के साथ। अंडरस्टूड? मतलब आपका एबिलिटी कितना है एंड आपका मेंटल एबिलिटी कितना है, उसके ऊपर, उसके साथ कंपेयर होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 30 सेकंड में 30 वर्ड लिख रहा हूँ एंड आप 30 सेकंड में एंड मैं वो नॉर्मली लिख रहा हूँ 30 सेकंड में 30 वर्ड, एंड जब मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो 30 सेकंड में 40 वर्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 40 वर्ड मेरा हाईएस्ट स्पीड हो जाएगा, इट्स इट, वो मेरा हाईएस्ट मेंटल स्पीड। लेकिन वो हैंडराइटिंग लिखने से अगर हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो मेरा मेंटल स्पीड नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जबरदस्ती मैं कोशिश कर रहा हूँ उस स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर नॉर्मली मैं 40 वर्ड लिख जाऊँ तो वो, अगर वो अच्छा हो जाएगा मेरा मेंटल स्पीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कैसे हम देख सकोगे मेंटल स्पीड? अगर किसी का भी हैंडराइटिंग का लेटर, सपोज देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ज्यादा फॉर्मूला है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। सपोज मैं आई लिख रहा हूँ एंड डॉट यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, डॉट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये राइट में चला जा रहा है ना, राइट पे चला जाएगा। एंड टी लिख रहा हूँ, टी का बार यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये स्पीड राइटिंग का सिस्टम हो रहा है। मैं फ्लू स्टॉप दे रहा हूँ, फ्लू स्टॉप ऐसे होना चाहिए, लेकिन फ्लू स्टॉप मैं दे रहा हूँ, जब दे रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। Have you understood? तो ये होता है स्पीड राइटिंग का सिस्टम। अगर कोई यू शेप वाला जो कनेक्शन मैंने दिखाया, गार्लैंड कनेक्शन जिसको कहते हैं, उसमें भी अब स्पीड ज्यादा होता है, उसका मेंटल स्पीड ज्यादा हो सकता है। एंड लेकिन यू शेप करने से मेंटल स्पीड अच्छा होगा एंड उसका कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन स्पीड में राइटिंग करने से अगर थ्रेड कनेक्शन हो जाता है, थ्रेड का मतलब क्या होता है, मैंने ऐसा लिखा है कि कोई पढ़ ही नहीं सकता क्या लिखा है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज दैट मैं जबरदस्ती उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज नॉट माई ओरिजिनल मेंटल स्पीड। अंडरस्टूड? तो अगर मेरा स्लांट कंसिस्टेंट है, मैं अगर स्लांट हमेशा एक ही स्लांट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ
टोटली राइट स्लैंट और लेफ्ट स्लैंट, तो वो स्पीड कहलाएगा। और सपोज देखो मैं अगर इस तरह का से स्लैंट लिखने की कोशिश करूं, सपोज मेरा स्लैंट है इस तरीके से, ठीक, ये लेफ्ट राइट वर्ड स्लैंट है ना, राइट वर्ड स्लैंट है, लेकिन ये स्लैंट मैं जब स्पीड में लिखूंगा सपोज और ज्यादा हिल जाएगा, अंडरस्टूड, बहुत ज्यादा हिल रहा है। हैव यू नोटिस, ये सब कुछ होता है स्पीड राइटिंग का प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। स्पीड राइटिंग बहुत ज्यादा स्पीड, अननेसेसरी स्पीड बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं होता किसी का भी। एंड हैंड राइटिंग का स्पीड अगर बढ़ जाता है तो उसका अननेसेसरी इंक फ्लो, आप देखना, आप अगर लिखोगे अननेसेसरी कहीं कहीं जगह पे इंक फ्लो आ जाता है ना, तो ये एक्स्ट्रा इंक फ्लो अगर ज्यादा होता है तो स्पीड कम हो जाता है उसका। अगर इंक फ्लो नहीं आता स्पीड कम नहीं होगा, स्पीड ज्यादा रहता है। किसी का लोअर जोन ये इस तरह से कोई दे देता है, इस तरह से छोड़ देता है, स्लैश की तरह छोड़ देता है, स्लैश मतलब इस तरह से लिखते लिखते अचानक छोड़ दिया जल्दी में, तो वो स्पीड राइटिंग का सिंबल है, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। एंड कोई कोई इस तरह से, इसको हम कहते हैं ग्राफोलॉजी के लैंग्वेज में फ्लाइटी हैंडलिंग स्ट्रोक, फ्लाइटी हैंडलिंग स्ट्रोक, जैसे यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रोक मैंने दिया लेटर जी को इस तरह से चला गया, लेटर जी को इस तरीके से चला गया, ये जो मैंने स्ट्रोक दिया इस एरिया को, ये वाला स्ट्रोक, दिस इज कॉल्ड फ्लाइटी हैंडलिंग स्ट्रोक। मतलब जब मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अचानक लोअर पोर्शन से डायरेक्टली अपर पोर्शन में चला जा रहा हूँ, दैट इज वन साइन ऑफ स्पीड राइटिंग, ठीक है। और जिसका रिलैक्स शेप होता है, शेप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो रहा है, मतलब इस तरह का शेप हो रहा है, ठीक है, रिलैक्स शेप की जैसा, ये भी स्पीड राइटिंग का सिंबल होता है, ठीक है। मतलब इस यहाँ पे बढ़ गया है ना, ये टोटल राउंड नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये सब स्पीड हैंडराइटिंग का। अगर किसी का कनेक्शन बहुत ज्यादा कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। जबरदस्ती कनेक्शन नहीं करना चाहिए अगर जहाँ पे जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड। कोई कोई असेंडिंग बेसलाइन थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है, दैट इज आल्सो गुड, वो मेंटल स्पीड बढ़ाता है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अच्छा, नेक्स्ट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, मेरा टाइम बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा रुक जाइए, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने की। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए जो दूसरे लैंग्वेज को बहुत इजीली समझ सकता है, इजीली एक्वायर कर सकता है, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा लेटर एल एच इसके साथ आता है, लेटर डी इसके साथ आता है। मैं कुछ नेगेटिव भी बता देता हूँ, अगर कोई भी हैंडराइटिंग है आप देख रहे हो इस तरह से पी लिख रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए मैं जब पी लिख रहा हूँ दोनों हाथ को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। एक बार में मैं पी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार में पी इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ, पी एक बार ये दिया एंड ये दिया, तो यहाँ पे एक गैप आ गया, नीचे भी एक गैप आ गया, तो इसको कहते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। सपोज इस तरह से बी लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से डी लिख रहा हूँ, सपोज इस तरीके से ई लिख रहा हूँ, कैपिटल ई, यहाँ पे एक गैप आ रहा है, हैव यू नोटिस, दीज आर ऑल कॉल्ड सेगमेंटेशन। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होने से बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। एंड कभी कभी आप हैंडराइटिंग में गैप देख सकोगे, गैप तो बहुत ज्यादा होता है, हम सब में होता है मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे देखिए एक गैप आ गया, यहाँ पे आ गया एक गैप आ गया, ठीक है, ये गैप आने से भी ये लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा,
नेक्स्ट मैं देखूंगा मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी। मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कोई भी हैंडराइटिंग का लेटर। देखिए मैंने यहाँ पे एम लिखा, ये देखिए इसका हम्प जो हुआ थोड़ा एंगल की जैसा दिख रहा है ना, मतलब इस तरह का स्मूथ नहीं है, है ना? थोड़ा एंगल की जैसा दिख रहा है। इन केस ऑफ लेटर एच का भी हम ये एंगल की जैसा दिख रहा है, तो इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत अच्छा आता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? मैथमेटिकल एबिलिटी आता है। नेक्स्ट क्रिएटिविटी। संप्रीति मैम कितना दूर हुआ था आपका? क्रिएटिविटी हो गया था? Start with creativity. ओके प्लीज स्टार्ट एंड आई विल कंक्लूड नेक्स्ट टाइम प्लीज। आई एम जस्ट शेयरिंग। Another very important element of intelligence is creativity. Creativity is actually the ability to create and express ourselves and also our idea in new ways. Next element is sensory activity. In sensory activity, we use all our five senses, like taste, smell, touch, sight, and sound. If I give an example, when children play with Play-Doh or on balancing beam, it helps to increase their sensory motor skills. Next one, another very important element of intelligence is goal-directedness. Goal-directedness implies aiming towards a goal or towards completion of a task. The last one, the last prescriptor, which was selected by 18.9% respondents, is achievement motivation, मतलब उपलब्धि की प्रेरणा. Achievement motivation is actually a social psychological term that describes when individuals are inspired or stimulated by success or accomplishments. For instance, employees are achievement motivated thrive well in those organizations where they receive regular performance evaluations or assessments. So over to you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। अच्छा क्रिएटिव आइडिया का ये तो हम सबको होना जरूरी है। क्रिएटिव आइडिया हम कैसे सीख सकते हैं? किसी के हैंडराइटिंग में देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी का जो मेन फॉर्मूला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है उसका हैंडराइटिंग का डिसकनेक्शन। अगर किसी का कनेक्शन ज्यादा मतलब कम हो जाता है हैंडराइटिंग में, मतलब जितना कम हो जाएगा उतना वो क्रिएटिव ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड ऑब्वियसली हैंडराइटिंग का जो एंगल होता है, एंगल ज्यादा होने से एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिएटिविटी ये बढ़ जाता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हैंडराइटिंग का एंगल का मतलब क्या होता है? सपोज मैं इस तरह सा एच लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंगल आ गया, अननेसेसरी एंगल, ये एनालिटिकल एबिलिटी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जहाँ पे एंगल जितना ज्यादा आएगा उतना ही आप में नेगेटिविटी क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। ठीक है, एंगल का मतलब स्ट्रेस ही होता है हर जगह पे, कोई भी लैंग्वेज में। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में हैंडराइटिंग का एंगल का मतलब होता है स्ट्रेस, जितना एंगल आएगा उतना स्ट्रेस आएगा। एंड नेक्स्ट आता है हम लोगों का सेंसरी जो पावर, इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप देखिए कोई ऐसा होता है, आप भी हो सकता हूँ, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। सपोज यू आर गोइंग टू ए पार्टी, एक पार्टी में आप जा रहे हो एंड बहुत सज धज के आप जा रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। एंड उसके बाद आप जब गए वहाँ पे एक मिरर दिखा, एक मिरर उस पार्टी में एक साइड में। अब जब उस मिरर के साइड से आप जा रहे हो तो पासिंग कर रहे हो आप, तब एक सेकंड के लिए उस मिरर के ऊपर आपका आंखें चला गया एंड आपने 5 सेकंड के लिए वहाँ पे रुक गए एंड अपने आप को एक बार देखते रहे सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं। अगर ठीक भी है थोड़ा उल्टा सीधा करके फिर से ठीक
बनाते हो आप, एंड कोई कोई तो जाए कौन सा डायरेक्टली पास कर सकता है मिरर ठीक है में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो कुछ टाइम। ওদের রুম কাটসাট क्यों কত कर বলতে रहे তুই हो? যারা কাটসাট কত आप বলতে अपने सेंस मतलब बॉडी का जो एक्स्ट्रा 5 सेंस होता है হ্যাঁ उसको এবার सेटिस्फाई তোমার জন্য करने বসে की থাকবে না ঠিক আছে चाहत তোমার ওসব रखते কথাবার্তা बहुत হবে ज्यादा। না ওরা অন্য জায়গার ছেলে तो বেরোবে इसको हम हैंडराइटिंग के हिसाब से इसको हम তুমি যদি विस्कोसिटी कहते हैं। এখন যদি ये একদম পাঠাও বলবো না তো आप কাজ देखिए করবে না আমি किसी কালকে के থেকে हैंडराइटिंग में अगर इंक अचानक इंक जरूरत से ज्यादा गिर रहा है तो उसके उसका सेंस बहुत ज्यादा होता है, उसका सेंसिटिविटी। ठीक है, मतलब हमेशा वो सोचता रहता है उसके 5 सेंस को कैसे सेटिस्फाई कर सकोगे आप। एंड इसके साथ मैं और कहूंगा लेटर जो सपोज इनके सब लेटर डी लिख रहे हो आप इस तरीके से लेटर डी लिख रहे हो, ये लेटर डी का जो लूप दिख रहे हो आप, ये जितना बढ़ जाएगा वो उतना ही सेंसिटिव होता जाएगा। एंड सेंसिटिव ज्यादा होने से क्या होगा, आपके बॉडी में नॉट ओनली मेंटली आपके बॉडी पर भी असर पड़ेगा। अंडरस्टूड? जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, कोई कुछ भी बुरा आपके बारे में कह देता है आपके सामने तो आप फायर हो जाते हो। तो उसका क्या होगा, उसके बॉडी का इसका ये जो माइंड का जो ये प्रॉब्लम इसके बॉडी में भी आ सकता है, उसका स्किन भी सेंसिटिव हो जाएगा, एलर्जी रिलेटेड इशू आ सकता है उसको, है ना। तो इस तरह से टी लिखता है जो इसके साथ इस तरह से जो टी लिखेगा टी में भी इस तरह से जो लूप दे देता है, तो इन दोनों को एक साथ मिलाओगे तो डेंजरस हो जाएगा प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा, गुड गोल डायरेक्टेडनेस नेक्स्ट पॉइंट था, बिफोर लास्ट पॉइंट गोल डायरेक्टेडनेस। हम लोगों का गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए, हम लोगों का गोल सेटिंग हमेशा अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको देखना होगा किसका गोल सेटिंग कैसा है। हैंडराइटिंग से कैसे दिख सकते हो, अगर आप लेटर सपोज किसी का बेस लाइन मतलब लिख रहे हैं उसका लाइन अगर इस तरह से वेवी है, ठीक है, लाइन अगर सीधा नहीं चल रहा है तो दैट मींस उसका गोल्स एंड टारगेट थोड़ा खराब है। अंडरस्टूड? उसको जिंदगी में गोल्स एंड टारगेट नहीं मिला ठीक तरीके से। एंड अगर लाइन इसका एकदम सीधा है तो ऑब्वियसली उसका गोल्स एंड टारगेट उसको मिल गया। अब उसको मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे जाना है एंड मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं तो डायरेक्टली इधर में जाऊंगा, है ना, मैं तो इधर उधर घूम के तो नहीं जाऊंगा ना। तो अगर मुझे गोल्स एंड टारगेट ठीक तरीके से दिखना है तो मैं सीधा चला जाऊंगा। एंड मेरा टी लेटर टी का बार ও তো ওখানে বসে থাকে যার ऊपर দরকার में সে दूंगा যায় तो ওখানে गोल का डायरेक्शन আপনার दरकार আপনি যান ওখানে अपर हो जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस के ऊपर ज्यादा इच्छा नहीं होगा, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने का कोशिश रहेगा हमेशा। ठीक है, आपका गोल सेटिंग बहुत हाई होगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है अचीवमेंट्स मोटिवेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका इंटेलिजेंसी के साथ जितना भी रिस्पॉन्स जितना भी कम मिले या ज्यादा मिले, मैं आपको कहूंगा अचीवमेंट मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले इसको आता है ये गोल सेटिंग, जैसा मैंने कहा ये भी यहाँ पे होगा। सपोज दिस इज योर पेज, आपका लेफ्ट मार्जिन, लाइन मेरा जितना भी खराब हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट है ना, मोर और लेस स्ट्रेट। तो लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ग्राफोलॉजिकली अगर हैंडराइटिंग का अगर सबसे खराब कोई सिंबल होता है तो ये लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट नहीं है उसका। अंडरस्टूड? लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट ना होने का बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। किसी का अगर लेफ्ट मार्जिन किसी का इस तरीके से स्ट्रेट नहीं हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। अंडरस्टूड? इन चीजों में उसका चैलेंजेस आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट उसका बेस लाइन ये भी सीधा होना जरूरी होता है। सीधा होने का मतलब क्या होता है, मैं इस तरह से जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, एंड इसके साथ
लेटर टी का बार ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये उसका मोटिवेशन अच्छा रहेगा। एंड एक और चीज जो आउट ऑफ द बॉक्स टोटली, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, आपका लेटर बी को मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। लेटर बी, स्मॉल लेटर बी को थोड़ा लंबा करके इस तरीके से अगर लूप बना देते हो तो ये आपका आइडियलिज्म बहुत बढ़ा देता है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड लेटर बी चेंज करने से इमीडिएट आपका सक्सेस नहीं मिलेगा। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, लेटर बी चेंज करने से इमीडिएट कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन लेटर बी चेंज करने से जो रिजल्ट मिलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, वो जिंदगी भर रहेगा, वो कभी नहीं चेंज होगा। लेटर बी इतना अच्छा लेटर है, वेरी वेरी पॉजिटिव लेटर, जो आपका सोल का पावर बढ़ा देता है। लेटर बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर सोल। अंडरस्टूड? यस। थोड़ा थोड़ा करके मैंने फॉर्मूला बताया सबके बारे में। टाइम बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी किया। सो आप बताइए। सर जो रेगुलर स्टाइल बी लिखते हैं विदाउट विदाउट लूप, या या इस तरीके से यस सर इनका एंड इनका हेल एंड हेवन डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं इस तरह का बी लिख रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा आइडियलिज्म इज वेरी गुड, बट मेरा आइडियलिज्म होगा एक स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर, नॉट एवरीथिंग, ठीक है। कोई स्पेसिफिक चीजों के ऊपर आई एम वेरी मच आइडियल, वेरी वेरी गुड पर्सन, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिक लिमिटेड हो गया, ठीक है। एंड in case of this I am not limited, I am putting lot of thing in my loop। yes। एंड इसके ऊपर मैं और भी वेबिनार मैंने किया था, ये सोल का पावर कैसे हम बढ़ा सकते हैं एंड मन का पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। मन का पावर एंड सोल का पावर दोनों डिफरेंस होता है, ठीक है। वो इसके ऊपर कई सारे वेबिनार में मैं बता चुका हूँ, नेक्स्ट डे बताऊंगा मैं, ठीक है। और बताइए कुछ क्वेश्चन हो तो। Sir, actually, what you're combining the two, you have done it with the Snyderman and Rothmans. यस But, यस, मैंने क्या किया, मैंने एक उसका जो थ्योरी हमने देखा, उस Yes, sir. तो मैंने ग्राफोलॉजिकली रिप्रेजेंट करने की Correlate कोशिश किया है. कोरिलेट But किया I है। have seen what you are actually telling with each letter, and जैसे spine का आपने बोला, mind का, all the physical organs of the human body. It is actually also known as anatomical graphology, 100%, right? 100%, यस। Right, sir. डायरेक्टली मैं हम लोगों का टॉपिक उसके ऊपर नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा बता नहीं पाया। Yeah. अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन द लेटर बी once again, once again। You want me to explain? नो, समवन इज one second, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इज इट विजिबल? ओके, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार और। जो इस तरीका से लेटर बी लिखता है, द पर्सन इज स्पेसिफिकनेस यहाँ पे ज्यादा आ जाता है। एंड इस तरीके से अगर हम लेटर बी लिखते हैं तो ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी, एंड ये मेरे हार्ट के ऊपर भी इंडिकेट करेगा लेटर बी। अंडरस्टूड? लेटर बी आपका हार्ट भी अच्छा रखेगा। अगर जो इस तरीके से बी लिखता है, his heart is also beating very perfectly well, and उसका आइडियलिज्म बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसके साथ मैं ऐड करूंगा, सपोज इन केस ऑफ लेटर बी मैंने इस तरीके से लिखा, यहाँ पे एक गैप आ गया, तो ये मेरे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा मेरे रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। मेरा आइडियलिज्म खराब हो जाएगा। अगर मुझे कुछ दूसरा स्कोप मिला डिसलॉयल डिसऑनेस्ट होने का, समटाइम्स मैं कर लूंगा, इस तरह का आदत हो सकता है उसको, ठीक है। लेकिन ओनली एक लेटर को देख के नहीं स्टैम्प मत मार देना किसी को, टोटल 100 को देख के बताना चाहिए। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस। एनी क्वेश्चन प्लीज? सो थैंक यू शंपति मैम, आपको कुछ कहना है प्लीज बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, यू हैव कम एंड वेरी वेल यू said. Thank you so much. My pleasure also. Thank you. I think it's already 8:15, so Yes, 8:15. So thanks all.
मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको। एंड नेक्स्ट संडे मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरा इस मंथ में बहुत सारा इनविटेशन मिल गया है मुझे शादी वादी का, पता नहीं मुझे जाना ही होगा, तो नेक्स्ट संडे नहीं रह पाऊंगा, अगले संडे मैं जरूर कहूँगा, एंड एवरी संडे मैं करता रहूंगा, नेक्स्ट संडे को छोड़ के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू समृति मैम, थैंक यू so much, कुछ sir. भी क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली मुझे जरूर कहना, मेरे व्हाट्सएप करना मुझे, आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, ma'am.